Good morning, student 9th standard. Today we are going to continue this chapter, the environmental management. We have been studied about weather and climate, changes in weather, Indian Meteorological Department, as well as we learn about geographic garbage production per day in metropolitan cities, as well as we see this table of classification and sources of garbage. Now we are going to learn about how principles of solid waste management. We already taken this solid waste management. Now we are going to learn about the basic principle of this solid waste management. There are mainly thermocol, carry bags and all, which is never degrade easily. It's take too much time to uh, degrade. That's why we need to manage this solid waste management with the principle of this R, 7R. Here first one is reuse, refuse, recycle, rethink, reduce, research and regulation and public awareness. First in reuse, what? After use materials should be reused for some other proper purposes. I think this all already taken. Refuse means avoid to use it. Then recycle means production of usable articles and recycling solid waste. For example, paper, glass can be recycled. Plastic also recycled. That's why we need to recycle that thing which we already used. After fulfilling our needs, we must recycle it. About rethinking our habits, activities and other consequences in connection with the use of various articles of daily use. Yes, we must be rethink about what we are using. It's really good or it's really bad for our environment. If it is harmful to our environment, then why should we reuse? Why should we use it? So rethink about it. Nowadays, it's Ganpati festival is running on. In this Ganpati festival, so many people is doing makhar. In Marathi, it's called makhar. The temple for God Ganesha, Lord Ganesha. For that purpose, they use thermocol. But nowadays, we are rethinking about thermocol. Thermocol is taking lots of years to degrade. That's why instead of thermocol, nowadays we are using the articles which is made by paper and all, which is easily degraded. So we need to rethink about what we are using, what we are doing, what is our activities, and with the help of these activities, what would be happen with our environment. Is that harmful or is that useful? That's a rethink. Then what? Reduce. A restriction of the uses of resources to avoid their wastage. Old materials should be reused. One thing should be shared by many. Use and throw type of object should be avoided. We must not use the object like use and throw. Those are very much harmful to our environment. That's why we must use that kind of article which is long run and which is useful for all of us, not for only one person. Is restricted up to one person. Next one is research. Conducting research related to reuse of materials and are temporarily out of use. Conducting research, the research must be conducted what we are using and what is its benefits, what is its harmful effect. If we do research, on the basis of that research we may conclude so many things which is really goodful to our environment, which is very useful to us. With the help of this research, we may discover many new things, which is ultimate goal of our life, to save our environment. Is related to that kind of thinking. Then regulations and public awareness. Regulation must be there, means some rules must be there, public rules must be there. We should avoid such kind of articles, such kind of things which is really harmful to our
environment. Therefore, the purpose of that, the regulation must be done by our municipal government and public awareness. We must do public awareness. We must aware public about this all: reuse, refuse, recycle, rethink, reduce, and research and regulations type of principles. With the help of that, we must going to achieve the goal of our goal, which is save environment. With this radioactive materials, we must need to do work with this solid waste management principle. Here some habits are described below. Do we have those habits? If so, how does it help in वेस्ट मैनेजमेंट? अगर हमको ये हैबिट है तो ये वेस्ट मैनेजमेंट पे आपको कैसे हेल्प कर सकती है? फर्स्ट वन, फॉलोइंग द 3R mantra: reducing the waste, reuse of waste, and recycle means recycling of waste. We must follow this 3R. Whatever garbage is outcome of our house, we must reduce it, as well as we do there so many articles, reuse it. Okay, and if possible, then we must give it for recycle. Throwing plastic wrappers of chocolates and ice cream biscuits into a dustbin, avoiding littering. ये अभी आपको करना चाहिए. आप लोग क्या करते हो? खाते हैं, रास्ते से चलते चलते चॉकलेट खा लिया, फेंक दिया, उसका रैपर इधर उधर जाता है, फिर वो पानी में गिरता है, नाले में गिरता है, फिर वो आगे चल के अपने लिए ही बहुत बड़ा खतरा बन सकता है. अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बैग, इंस्टेड ऑफ दैट वी मस्ट यूज़ क्लॉथ बैग्स और द बैग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओल्ड साड़ीज, बेडशीट्स एंड कर्टन्स. ये जो हमारे घर में होते हैं ना, ये सब ओल्ड कर्टन, साड़ी, इससे बना हुआ क्लॉथ बैग्स भी हम यूज़ कर सकते हैं instead of using this polythene bag, which is really harmful to our environment. Using both sides of a paper for writing, reusing greeting cards and gift papers. ये भी हम कर सकते हैं. थोड़ा सा पेपर में लिख लिया, बस अरे ये ख़राब हो गया, बस कूड़ा कचरे में डाल दिया. ऐसे करने के बजाय हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करें, दोनों साइड में लिखिए. या तो ग्रीटिंग कार्ड हम देते हैं, पेपर का ग्रीटिंग कार्ड, तो उसका आप रीयूज़ करें, दोबारा से ही वो अच्छे से लिख के नया बना के उसको फिर से दे सकते हो. अवॉइडिंग यूज़ ऑफ पेपर एंड प्रिपेयरिंग टू यूज़ वंस ओन हैंडकर्चीफ. टिश्यू पेपर आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, उसका मिनिमम इस्तेमाल करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ दैट हैंडकर्चीफ वी मस्ट यूज़ अ क्लॉथ विच इज़ आवर हैंडकर्चीफ. यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ लीड बैटरीज. ये लीड बैटरी जो हम इस्तेमाल करते हैं, सबके घर में होता है. ये लीड बैटरीज इस्तेमाल करने की बजाय हम रिचार्जेबल बैटरीज जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एडुकेटिंग, एनकरेजिंग एंड फैमिली एंड सोसाइटी इन दिस रिगार्ड. आप अच्छे से प्रोग्राम बना सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो और उससे आप पूरे समाज की जागृति कर सकते हो, उनको एजुकेट कर सकते हो, एनकरेज कर सकते हो, एज वेल टू योर फैमिली एज वेल एज होल सोसाइटी, विच मे हेल्प टू व्हाट वी से helpful to our environment. It leads to a good leadership in our environment. The role of family is very much important. One family, so many families become a society, and if all society is come together and do some which is good for our nature, it's really good to our environment. Avoiding use and throw type of articles like pens, cold drinks, tetra packs should be strictly avoided. ये आजकल तो होता है ना, टेट्रा पैक है, बनाई चीज़ उसमें मिलती है, हम लाते हैं, उसे खोलते हैं और टेट्रा पैक को फेंक देते हैं. कैन में जो कोको कोला है, कुछ है, जूसेस है, वो पीते हैं, कैन को ऐसे ही फेंक देते हैं. और यूज़ एंड थ्रो वाले पेन भी आजकल बहुत इस्तेमाल होते हैं, यूज़ कर लिया, फेंक दिया. तो आपको ये सब अवॉइड करना चाहिए. इट इज़ योर स्मॉल हेल्प टू आवर नेचर, एंड ऑल ऑफ अस डूइंग दिस हेल्प टू आवर नेचर, इट्स लीड टू अ big advantage to our
environment. That's why we must use this R principle, 3R mantras in our house, in our atmosphere, in our whole society, in our whole country, which is a good goal for our India. America is the largest producer of electricity from the solid waste. Japan has developed in the project of production of threads, papers, and the other useful materials from banana peelings. Find about the such products in our region. ये जहाँ पे अमेरिका ने ये किया, ये कंट्री ने वो किया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, ये होमवर्क है, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालो और मुझे सेंड करो. ओके. पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट. अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखा हमने, आर हेल्प 3 मंत्रास भी देख लिए, हाँ, और ये आर वाला फैक्टर भी देख लिया, प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ओके. तो इसमें आप देखोगे अभी द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट. सॉलिड वेस्ट में जो डिग्रेडेशन होता है वो पीरियड क्या है. फर्स्ट वेस्ट मटेरियल इज banana peelings. Period of natural degradation is 3 to 4 weeks only. In cloth bags, 1 month. Rugs, 5 months. Woolen socks, 1 year. Wood, 10 to 15 years. Leather shoes, 40 to 50 years. Tin cans, 50 to 100 years. Aluminum cans, 200 to 250 years. And certain plastic bags, 10 lakhs years. थर्माकोल स्टाइरोफोम कप इज़ इन्फिनिट ड्यूरेशन. इसका तो ड्यूरेशन ही बता नहीं सकते कि हम थर्माकोल को कितना टाइम लगता है डिग्रेडेशन करने. तो आजकल हम वो थर्माकोल बैन कर दिया है, वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इट्स डायरेक्ट हेल्प टू आवर नेचर. तो आज से आप ठान लीजिए कि आप कुछ प्लास्टिक का यूज़ नहीं करोगे तो रीयूज़ करोगे उसका, या थर्माकोल यूज़ नहीं करोगे, स्टेरोफॉर्म यूज़ नहीं करोगे, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है. आज से आप ठान लोगे आप क्लॉथ बैग्स ही यूज़ करने वाले हो, और कैन फूड अवॉइड करने वाले हो, टेट्रा पैकेट्स अवॉइड करने वाले हो. जो आप अवॉइड करना सीखोगे तो आपकी सोसाइटी अवॉइड करना सीखेगी, और पूरी सोसाइटी जब अवॉइड करेगी तो देश अवॉइड करेगा, और पूरा देश जब अवॉइड करेगा तो हम हमारा इन्वायरमेंट बचा लेंगे. इफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द वेस्ट solid waste generated around us in a long, it seriously affect other environmental factors. What care will you take to avoid this? तो आप कौन सा केयर करने वाले हो कि इन्वायरमेंटल के अदर फैक्टर भी खराब न हो. तो फिगर 9.5 below shows a method of storing waste. In 9.5b shows the use of specific dustbin as per the type of waste. Think about how such eco-friendly waste management can be achieved by the following this method in our homes too. तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया है इसमें से जो भी डस्टबिन, पेपर के लिए ब्लू, ग्लास के लिए ग्रीन, प्लास्टिक के लिए येलो, मेटल के लिए रेड, ये आपको दिए गए. एंड वेट गार्बेज एंड ड्राई गार्बेज के लिए अलग अलग दिए गए हैं, सेपरेट डस्टबिन दिए गए. ये आपको करना ही करना है. A peep into the past. पास्ट में ज़रा देखिए झाँक के. Ever since the ancient time, the special attention has been given to a garbage disposal in the Greek city of Athens. In 320 BC, a law had been enacted regarding the garbage disposal. It made throwing garbage in the open on offense. तो ये कब एथेंस सिटी में 320 BC में हुआ था लॉ वहाँ पे कि आप कचरा यहाँ वहाँ फेंक नहीं सकते हैं. और वो लॉ आज भी हमारे इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन हम तो हैबिचुअल है, जो भी कूड़ा कचरा रास्ते से जाते जाते चॉकलेट खा ले वही फेंक दिया है ना. तो हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए. अगर 320 BC में वो ग्रीक सिटी में पता चल सकता है कि वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो अभी हमको क्यों नहीं पता चलता है. तो आप प्लीज़ अपने घर का तो वेस्ट मैनेजमेंट आप कर ही सकते हो. डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ नेक्स्ट. हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखा, नाउ वी लर्न अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट. Which natural calamities have you experienced? How did they affect the condition in your surroundings? नेचुरल कैलेमिटीज़ देखा है ना. अब तो फ्लड तो
हर साल आजकल सब फ्लड से गुजरते हैं, वो हमने देखा ही है, वो सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। हाउ यू मेक अ प्लान टू बी अ सेफ फ्रॉम कैलमिटीज़ और द मिनिमाइज द डैमेज। आप कैसे प्लान करोगे कि आप डैमेज कम हो, तो उसके लिए आपको व्हाट इज डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये सीखना, और अगर हो गया, अगर आप ऐसे मुश्किल की कंडीशन में फंस गए तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में अब हम देखेंगे। वेरियस नेचुरल डिजास्टर्स लाइक thunderbolts means lightning, floods, fire and man-made disaster like accident, bomb explosions, chemical accidents in industries, stampedes in the mass gathering, riots etc. ऐसे दंगल हो जाती है, या तो एक बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं कि जुलूस जलसा निकलता है तो एक दूसरे को रोनते हैं, कुछ भगदड़ मच जाता है, तो ये बॉम्ब एक्सप्लोजन होना, बॉम्ब फटना, केमिकल वायु गलती सुना होगा ना, ये सब होना या एक्सीडेंट, ये सब आता है, किस में आता है, डिजास्टर में आता है। अराउंड अस अकर अराउंड अस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और डिजास्टर से होता क्या है, लाइफ का भी लॉस होता है और प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। कैन यू टेल what are the types of casualties that are seen to occur in a different type of disaster? कौन से casualties है? First aid to disaster victim. The main object of first aid is the prevention of death, preventing deterioration of health and starting the process of rehabilitation. Hence, it is important to know about the emergency measures और the first aid practices to be followed. अब जब डिज़ास्टर होता है तो हमारा पहला ध्यान कहा जाना चाहिए कि हम जान माल का नुकसान न होने दें। अगर आपको ये ऐसे कोई विक्टिम पता चला तो उसको उसका हेल्थ का रिहैबिलिटेशन करने के लिए, उसको हेल्थ उसकी ख़राब ना हो तो उसको पहले आप क्या करोगे, फिर उसका रिहैबिलिटेशन क्या करोगे, ये आपको सोचना चाहिए। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड इज़ द लाइफ एंड रिकर्सिएशन, ABC क्या है, फर्स्ट एयरवे। If the victim has difficulty in breathing, the head should be held in a backward stopping position or chin should be raised so that the respiratory passage remains open. एयरवे तो आप कैसे करोगे, चीन ऐसे ऊपर और ऐसे उसको लेके जाओगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका वो ओपन रहेगा और वो ऑक्सीजन ब्रीथ कर सकता है। ब्रीदिंग, इफ ब्रीदिंग हैज स्टॉप द विक्टिम शुड बी गिवन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बाय माउथ टू माउथ रिकंसिएशन। यहाँ पे दिया गया है कि आप माउथ टू माउथ उसको सांस दे सकते हो, इट्स आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। देन सर्कुलेशन, इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस देन आफ्टर गिविंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ट्वाइस, द हार्ट शुड बी प्रेस्ड डाउन हार्ड बाय द प्रेसिंग द चेस्ट विद द बोदा पाम्स। आपने ये देखा होगा, टीवी पे बहुत बार दिखाया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, किसी को हार्ट स्ट्रोक आ गया, क्या आ गया, तो चेस्ट के बीच में आपको दबाना चाहिए ये 15 टाइम्स। दिस टू एक्शन शुड बी रिपीटेड अल्टरनेटली अबाउट 15 टाइम। दिस इज कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी रिकंसिएशन मीन्स CPR। इट्स हेल्प टू ब्रिंग द सर्कुलेशन बैक टू नॉर्मल। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी सर्कुलेशन है वो बैक टू नॉर्मल हो सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज एक्शन इम्प्लीमेंटेड थ्रू द प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन। इट इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या है, प्रिवेंशन एंड लॉसेस ऑफ द डेंजर, यहाँ पे हमको प्रिवेंशन करना है, लॉसेस और कुछ और डेंजर ना हो इसका। इम्प्रूविंग टॉलरेंसेस, टॉलरेंस मीन्स अवॉइड ही कर सकते हो, कैसे अवॉइड कर सकते हो ये देखना है। प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर, मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सटेंड टू हार्म, प्रिपरेशन ऑफ फेस द डिजास्टर, इमीडिएट एक्शन इन द डिजास्टर सिचुएशन, अगर कुछ हो जाए तो क्या एक्शन लेना है, ये सब उसके लोग अवेयर होना चाहिए इसके बारे में। इमीडिएट एक्शन इन द डिजास्टर सिचुएशन, असेसमेंट एंड डैमेज एंड इंटेंसिटी इन डिजास्टर, अरेंजिंग फॉर द रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प। रेस्क्यूअर, फ्लड आता है, लोग बीच में बहुत फंस जाते हैं, तो उसके लिए रेस्क्यू वर्क कैसे हो इसके बारे में भी आपको पता चलना चाहिए। रिहैबिलिटेशन एंड रिबिल्डिंग, पानी में घर चला जाए तो वो लोगों का रिहैबिलिटेशन तो होना ही चाहिए ना, उनका रिबिल्डिंग करना।
आर्टिफिशियल ब्रीदिंग यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है 9.6, वो आप प्लीज़ देखो. ब्लीडिंग, इफ द विक्टिम इज इंजर्ड एंड ब्लीडिंग थ्रू द वुंड, then the wound should be covered with a antiseptic pad and pressure applied on its 5 minutes with the either thumb or palm. आपको ये पैड लगाना है एंटीसेप्टिक और उसको प्रेशर अप्लाइड करना है. बिफोर दैट कंटिन्यू दिस चैप्टर, होमवर्क इज दैट please write down full exercise of this chapter. Now we see the fracture and impact of vertebra. If any bone is fractured, it is essential that the fractured part be immobilized. अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसको अच्छे से ट्रैवल कराओ, वो थोड़ा भी हिलना डुलना नहीं चाहिए. इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एनी अवेलेबल वुडन रॉड्स, बैटॉन्स और रूलर, इससे भी ये हो सकता है. इफ देर इज एन इम्पैक्ट ऑन द बैक ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, द पेशेंट शुड बी केप्ट इमोबाइल ऑन फिल्म स्ट्रेचर. फर्म स्ट्रेचर पे उसको, अगर वर्टिब्रा का कुछ प्रॉब्लम है तो उसको फर्म स्ट्रेचर पे लिटा के ही आपको लेके जाना है. बर्न्स, इफ द विक्टिम हैव बर्न इंजुरीज, इट इज़ बेनिफिशियल टू होल्ड द इंजुर्ड पार्ट अंडर द क्लीन एंड कोल्ड फ्लोइंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. अगर कुछ जल गया है, वो इंजरी हो गई है, तो आपको उसे पानी में 10 मिनट तक उसको रखना है, तो आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा. द इंजुरीज लाइक स्ट्रेन, ट्विस्टिंग एंड कंटिशन, द राइस रेमेडी शुड बी अप्लाइड. तो उसके लिए कौन से है, स्ट्रेन अगर आ गया, ट्विस्टिंग, कंस्टिट्यूशन आए, तो राइस रेमेडीज कौन है, रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एवेलेट. Rest, eyes, compression and elevate. Allow the victim to sit in a relaxed position. Apply an ice packs to the injured part. After the ice pack treatment, the injured part should be massaged gently. The injured part should be kept in a raised or elevated position. तो ये आपको समझ में आया होगा. यहाँ पे कर्डल मेथड, कैरिंग पिगी बैक मेथड, ह्यूमन crutch method, then pulling and lifting method, and carrying 2 hands chair, stretcher, these all given here. You should go through it. You read this, and if you have any kind of problem, please ask me. This is your homework. Write down short note on this all type of methods which are very very important to transport the victim from one to another. Cradle method में क्या होता है, यूजफुल फॉर चिल्ड्रन अंडर 8 वेट विक्टिम. देन ह्यूमन क्रंच मेथड में, इफ वन लेग इज इंजर्ड, द विक्टिम शुड बी सपोर्टेड विद द मिनिमम लोड ऑफ द अदर लेग. देन कैरिंग ऑन 4 हेड चेयर, इन दिस यूजफुल व्हेन द सपोर्ट इज इन नीडेड टू फॉर अ पार्ट बिलो द वेस्ट. तो कैरिंग पिगी मेथड यूजफुल फॉर कैरिंग पेशेंट हु आर unconscious. Pulling and lifting method is useful to carrying the unconscious patient through the short distances. Then carrying 1-2 hand chair and stretcher, useful those patients who cannot use their hands but can hold their body upright. And stretcher in an emergency, if one conventional stretcher is not available, then a temporary stretcher can be made using band books and blanket. तो ये मेथड्स है, आपको ये डिटेल में पढ़ना है, और ये मेथड हम सबको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हम कब इसका इस्तेमाल करें. हमारे लाइफ में डिज़ास्टर तो आने ही है, तो इस वक्त आपको ये मेथड्स पता होना चाहिए, जिसकी वजह से यू आर गोइंग टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर. यू शुड गो थ्रू इट. Other emergency measures are given here. You should read it, and if you have any kind of problem, you may ask me. Okay, and for today it's finished. And write down this whole exercise. We'll do continue our next chapter, next lesson in our next lecture. So if you have any kind of queries, you may ask. Till then, goodbye.